So, very good morning. We have studied origin of electrode potential and Nernst equation for calculating electrode potential. कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ओरिजिन कहाँ से आता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे नर्स्ट इक्वेशन से उसको पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? आप जानते हैं किसी भी सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव। एनोड से कैथोड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड means minus to plus. So we say current flows from cathode to anode. It is said that current is opposite flow of electrons. Now the question is, why electron flows? Why current is produced? What is the driving force? The driving force is called EMF. The driving force responsible for flow of electricity in an electrochemical cell is known as electromotive force. I should write the definition. EMF is the driving force responsible for the flow of electricity in an electrochemical cell. Now the question is, which type of force it is? The force responsible for flow of electricity in a cell. Which type of force is? You know, flow always takes place from high to low. Air flows from higher pressure to lower pressure. Heat flows from high temperature to low temperature. So here also the driving force is potential difference. Potential, which you have studied yesterday. Potential difference is the driving force. It is actually difference of potential between two electrodes. Actually, difference of potential between two electrodes. एनोड और कैथोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, that is responsible for flow of electricity. If potential of both becomes equal, then electricity will not flow. Flow is possible only due to difference in potential, and it is calculated as E cell equal to
ER minus EL. We may write E cathode minus E anode. Electromotive force E cell is difference of electrode potential of right electrode and left electrode, cathode and anode. Okay, this is actual case. Electromotive force is actually difference of potential. It is calculated EC minus E. In some book, you may find different formula, but as per convention, you must stick with this formula because this is the convention of electrochemistry that we take electrode potential. Some more formula will be maybe what will be E cell equal to E ox left plus E red right, or E ox right minus E ox left. This type of formula also you can find in some book, but we are not in operation. As per convention, it is always EC minus EA, where E is electrode potential. Keep in mind, it is electrode potential. Means what? Means it is reduction potential. If oxidation potential will be given, you are able to convert it into reduction potential only by using minus sign. Only a minus sign will be sufficient. Okay? Any problem? Now we shall derive formula for electromotive force. Of an electrochemical cell. Okay. So now next equation. Next equation for EMF of a cell. Yesterday we have studied next equation for electrode potential of an electrode. And now we are studying next equation for EMF of a cell. So just you have seen E cell equal to E right minus E left. The reduction. Cathode minus anode. So what is E cathode? E cathode will be E naught cathode minus 2.303 RT by NF log base 10 1 by Mn plus ion cathode minus
naught anode minus 2.303 RT by NF log base 10 1 by metal ion concentration anode. Okay, I have done nothing new. Only I have substituted value of electrode potential of cathode and electrode potential of anode. So E equal to E naught minus 2.303 RT by NF log 1 by Mn plus that I have written. C for cathode, E for anode. Now solve it. You can solve, no problem. That is equal to E naught C minus E naught A. E naught C minus E naught and plus minus 2.303 RT by NF log base 10 1 by Mn plus cathode minus minus plus 2.303 RT by NF log base 10 1 by Mn plus anode. Got that? So now E naught cathode minus E naught anode equal to E naught cell. Keep in mind E naught cathode minus E naught anode equal to E naught cell. Minus, take minus common, minus 2.303 RT by NF can be taken common. Then it will be 1 by, sorry, log base 10 1 by Mn plus ion cathode. It is माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लिए तो माइनस होगा, तो ना माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस log base 10 1 by Mn plus ion anode. ये हो गया E naught cell minus 2.303 RT by NF. यहाँ कॉमन ले लीजिए, log m माइनस log n पता है आपको, log m minus log n is equal to log m by n. So this is log m minus log n will be log m by n. It will be log base 10 1 by Mn plus cathode divided by 1 by Mn plus anode. Okay? Log m by log n. Better write in this way. 1 by Mn plus cathode into Mn plus anode by 1. इसको उलट दिए, log m by n होना था, log m उलट दिए, ये हो गया, ये हो गया. अब फाइनल रिजल्ट E naught cell minus 2.303 RT by NF log base 10 metal ion concentration at anode by metal ion concentration. This is final last equation for
EMF of an electrochemical cell। एक बार रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला है E सेल इक्वल टू E रिडक्शन कैथोड माइनस E रिडक्शन एनोड। रिडक्शन लिखना जरूरी नहीं है, आप जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन पोटेंशियल, भी लिख दिया। अब E cathode equal to E naught cathode minus 2.303 RT by NF log 1 by metal ion cathode। E anode equal to E naught anode minus 2.303 RT by NF log 1 by metal ion at anode। अब इसको सॉल्व किया, इसको ले गए बाएं, E naught C माइनस है यहाँ पर माइनस E naught A, फिर ये लिख दिया माइनस 2.303 RT by NF log 10 1 by NF प्लस कैथोड, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ माइनस 2.303 RT by NF log 10 1 by, ठीक है। अब इसमें हम लिख रहे हैं क्या, 2.303 RT by NF यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हमने कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया, ये बच गया log 1 by Mn प्लस कैथोड, ये बच गया log 1 by Mn प्लस एनोड, यहाँ प्लस था यहाँ पीछे माइनस है, log m माइनस log n होता है log m by n, इसे log m बटे n किए, उलट गया log m into 1 by n, बस लिखे। Any question in any mind? This is formula for EMF of an electrochemical cell। इसी पर न्यूमेरिकल बनाएंगे आप। और एक जानकारी तो आपको है, कल हमने दिया था कि रूम टेम्परेचर, इसको हम एक 25 डिग्री मानते हैं, at 25 डिग्री वैल्यू ऑफ 2.303 RT by F आपको मालूम है, कल मैंने लिखा था, याद है किसी को? कल लिखे थे वैल्यू, इसका वैल्यू कल हम लिखे थे 25 डिग्री सी पर, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सी और 278 केल्विन, 2.303 RT by F equal to 0.0591। Therefore, E cell will be equal to E naught cell minus 0.591 by n log base 10 metal ion concentration anode by metal ion concentration cathode। Simplified formula, गुणा भाग कम करना कोई बात नहीं है, you can put the value and calculate। इसमें सुविधा होगी, अगर 25 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप इजीली EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम जब तक बनाएंगे नहीं, फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, बहुत जगह कंफ्यूजन हो जाएगा। So I request solve all the problem one by one, सारी प्रॉब्लम को बनाओ, और जहां नहीं बनता हो वहां से पूछो, नहीं तो नहीं होगा, सवाल बनाए बिना ये नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। इसमें और दो केस है इस फॉर्मूला का, इसको मैं लिख ही देता हूँ। अभी देखिए हमने क्या किया है, कैथोड और एनोड दोनों पर n प्लस लिया है, मतलब हमने माना है कि दोनों की वैलेंसी इक्वल है। When valency of ion is different, when valency of metal is different, then
E cell will be equal to E naught cell minus 2.303 RT by M into NF log base 10 metal N plus concentration of anode power M by metal M plus anode power N। अगर मेटल का वैलेंसी अलग अलग है तो ध्यान दीजिए, इसका वैलेंसी n है उसका पावर m, इसका वैलेंसी m है उसका पावर n। वैलेंसी पावर में उल्टा हो जाता है। हम एग्जांपल्स दिखाते हैं, ये बात याद रखिए। जब दोनों की वैलेंसी सेम है 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये फॉर्मूला है। जब वैलेंसी डिफरेंट है, मान लीजिए इस m का एनोड का वैलेंसी है n, कैथोड का है m, इसमें हो गया mn प्लस पावर m, इसमें mm प्लस पावर n। कैथोड का वैलेंसी एनोड का पावर, एनोड का वैलेंसी कैथोड का पावर। ये बात आपको याद रखना। अभी एग्जांपल देते हैं। और एक और है, जब आप कोई इक्वेशन दिया रहेगा तब क्या करें। अगर मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है इस टाइप का, M1A plus M2B gives you N1C plus N2D, उस समय करेंगे आप E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF जो आएगा उसमें log base 10 C concentration power N1 D concentration power N2 A concentration power N1 B concentration power N2। ये n आपको देखना पड़ेगा, कॉमन जो होगा बैलेंस ये लेंगे। राइट कंसंट्रेशन C concentration power N1 D concentration power N2 A concentration power M1 B concentration power M2 when chemical reaction is given, जब रिएक्शन दिया हुआ है तब के लिए, ठीक है। यही 3 टाइप का फॉर्मूला है, इस पे आपको न्यूमेरिकल बनाना है। हम अभी इसको दिखाते हैं एग्जांपल, कैसे आप यूज करेंगे फॉर्मूला को, और आगे हम फिर इक्वेशन लिख के भी दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए है Zn सॉलिड, Zn2 प्लस एक्वस, सॉल्ट ब्रीज, Ag प्लस एक्वस, Ag सॉल्ट। ये सेल है, ये हुआ एनोड, ये हुआ कैथोड। देख रहे हैं एनोड का वैलेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। कैथोड का वैलेंसी 1 है। यहाँ करेंगे E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by 2 into 1F। यहाँ देखिए रह जाएगा, तो ही रहेगा। वैसे 2 3 हटा दो, 3 into 2 6 हो जाता है। log base 10 ऊपर होता है एनोड कंसंट्रेशन, एनोड कंसंट्रेशन Zn2 प्लस कंसंट्रेशन। याद करिए E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by M into NF log base 10 एनोड कंसंट्रेशन पावर कैथोड की वैलेंसी, कैथोड की वैलेंसी कितनी है 1 रहे, डिवाइडेड बाय Ag प्लस पावर 2, एनोड पर कैथोड की वैलेंसी पावर, कैथोड पर एनोड की वैलेंसी पावर। इसको याद
दो डिफरेंट रहेगा, आयन दोनों की वैलेंसी अलग रहेगी, तो हम इस तरह से एक का वैलेंसी दूसरे का पावर, ठीक है। अब आइए इस ई सेल निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं। ई सेल निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, ई सेल निकाल के हम लोग और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एफ ई, डेल्टा जी ई चेंज इन फ्री एनर्जी। आपसे पूछेगा केमिकल सेल में कितना फ्री एनर्जी चेंज हुआ, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई निकाल के आप डेल्टा जी निकाल, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, क्यू मीन्स वही एनोड कंसंट्रेशन और कैथोड कंसंट्रेशन। डेल्टा जी हुआ तो हम एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया गया है डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम पर there is no free energy change, it is zero. At equilibrium delta G equal to zero, zero equal to and Q equal to K, equilibrium constant delta G naught plus RT ln K, और delta G naught equal to minus RT ln K, इसको बाएं ले आए, डेल्टा जी वही रह गया, इसको बाएं ले आए माइनस RT ln, फिर अगर ln का मान देंगे आपको मालूम है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 RT log base 10 K। तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से डेल्टा जी निकाल सकते हैं और डेल्टा जी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। 12th सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल एंड आल्सो फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको ऐसा प्रॉब्लम हल करना चाहिए इसमें आप ईएमएफ निकाल सकें, डेल्टा जी निकाल सकें और के निकाल सकें। इसको थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हैं। क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 K, इसलिए log 10 K इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी बाय 2.303 RT होगा। log 10 K इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट बाय 2.303 RT। अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू दे देंगे क्या हो जाएगा, log 10 K इक्वल टू माइनस NF E naught by 2.303 RT, K equal to NT log minus NF E naught by 2.303 RT होगा। और आप जानते हो 2.303 RT by F होता है 0.0591, वो मान भी दे सकते हो, equal to NT log
माइनस ई नॉट बाय एन ई नॉट बाय 0.091। इतना फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिस पर आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप एक एक लाइन फॉर्मूला को, एक एक लाइन को देखिए, समझिए, और जहां भी आपको दिक्कत लगे कि कैसे हुआ तो वो आप हमसे पूछिए, ठीक है। और इसके बाद न्यूमेरिकल बनाइए। पहले न्यूमेरिकल बनाइए एनसीईआरटी से, आपको तो पैटर्न मालूम है, और एनसीईआरटी बना लेने के बाद एमटीजी न्यूमेरिकल्स इन केमिस्ट्री बनाते हैं, इससे बनाइए। एमटीजी प्रकाशन का ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम है, इतना अगर बना लेंगे तो फिर आपको कोई नया प्रॉब्लम नहीं बचेगा। आई एम श्योर आपका सारा प्रॉब्लम बन जाएगा आपके एग्जाम में। और फिजिकल केमिस्ट्री से तो न्यूमेरिकल रहता ही रहता है, तो ध्यान रखो इसको। इसमें न्यूमेरिकल खूब प्रैक्टिस करो, पूछो हमसे नहीं बनता है, ठीक है। और मन से पढ़िए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड को भेजिए और उसको भी बोलिए, वो भी उसको देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए। कुछ सुधार की जरूरत लगती है तो उसको कमेंट में लिखे, मैं सुधार करूंगा। सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियो हम बनाएंगे तो उसके पास सीधे पहुंचेगा, मुझे भी तसल्ली होगी कि बच्चा मेरे परिश्रम से लाभ उठा रहा है, ठीक है ना। मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। हर आदमी अपने जितने फ्रेंड हैं, ग्रुप है, सबको शेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।